Can you visible the slide? No, sir. Okay, 1 minute. Okay, hello everyone. Yes, it is visible, sir. Okay, so good morning to all of you. So today our webinar topic is pre-participation examination in sports, the physical therapy perspective. So all we know about the sports, particularly the word sports come from Old French language. That if we start with the definition on sports, means it includes all form of physical activity or trainings or games through the casual or organized participation aim to improve the physical ability or improve the skill while some aspect to entertain the spectators. तो ये स्पोर्ट्स का जो टर्मिनोलॉजी है और उसका वो एक डेफिनेशन है. And if we talk about the classification of sports before the examination, so if we divide the sports in various categories like a non-contact sports, contact sports, okay, water sports. In non-contact sports, example like athletics, fencing, archery, shooting. So these are the example of non-contact sports. Okay, contact sports is divided into the further two subcategory in minimal or medium contact sports or fully contact sports. So in minimum or medium contact sports, example like football, hockey, volleyball, basketball, and fully contact sports like wrestling, judo, taekwondo, wushu. Last category is water sports. Water sports, example in swimming, diving, kayaking. So these are the classification and categories of sports. अब हम बात करेंगे प्री पार्टिसिपेशन एग्जामिनेशन. तो जो वर्ड्स है प्री पार्टिसिपेशन एग्जामिनेशन मीन्स comprehensive assessment of athletes' overall health and its ability to perform the highest in the sports. You can see the figure on top of slide, which indicated the how the examination process will carried out. कैसे examination process conduct करते हैं, तो उसमें एक आप simple figure में आप देख सकते हो कि जैसे स्क्रीन किया है उसके बाद में फर्दर टेस्ट है. Then go for the even advice and support if required any further action or treatment plans. तो एक जो बेसिक आइडिया है ये प्री पार्टिसिपेशन एग्जामिनेशन का. अब एक सेकंड है एक्टिविटी एक्सरसाइज एंड एथलेटिक्स. each term represent a more dynamic life. तो एक्सरसाइज और एक्टिविटी में आप क्लिनिकल सिनारियो में वर्क कर रहे हो तो वहां पे भी आप असेसमेंट कर रहे हो. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकल मींस एग्जामिनेशन इन स्पोर्ट्स एंड इन नॉर्मल क्लिनिकल सिनारियो? वी ऑल आर डूइंग इन जनरल एग्जामिनेशन मींस subjective examination, observational palpation and examination of the specific problem in clinical setting. But in sports, when we are dealing with the athletes or team, you have to work in comprehensive manner and work like a team. So you have option like means completely medical examination by the team medical doctor. You can do the musculoskeletal screening by in means of range of movement assessment, postural evaluation, functional movement screening, strength and proprioception. The third one is sport-specific clinic, sport-specific assessment. So these are the basic difference between the normal clinical scenario assessment and in the sports. Exercise. We all are doing the exercise to maintain our general fitness for our daily activities. But ये जो athletics है उसमें क्या होता है कि we have a particularly designed task or specific situation that test your ability for the specific outcome. हम उसमें जो भी प्लानिंग कर रहे हैं एक स्पेसिफिक आपका प्लानिंग होगा वो पर्टिकुलर गोल्स के लिए होगा. So that's why the examination will be differed in comparative to the normal clinical scenario.
Pre-participation examination has a series of assessment like screen, test and assess. So what is the basic difference between the three terminology, screen, test and assess? स्क्रीन का मतलब है कि एक जो ग्रुप है उसको हमने क्लासिफाइड किया और उसको हमने कोई रिस्क पर्टिकुलर है कि नहीं उसको चेक करने के लिए क्रिएट किया, तो उसको हम बोलते हैं कि स्क्रीन। जैसे हम पोस्चर स्क्रीनिंग करते हैं एक ग्रुप का, अंडर सपोज आपने एक ग्रुप पर ले लिया, अंडर 19 ग्रुप है आपके पास, अंडर 17 ग्रुप है, तो एक ग्रुप हो गया। मीन स्क्रीन का मतलब है अ सिस्टम टू आइडेंटिफाई द सुटेबल पीपल और टू चेक द रिस्क। ये आपका स्क्रीन का नॉर्मल एक सिनेरियो होगा कि आप उसको कैसे उसको मेंशन करेंगे। सपोज आपने पोस्चर आइडेंटिफाइड किया, उसके बाद में सपोज किसी का आपने देखा कि प्रोनेटेड फुट है, वो आपका स्क्रीन होगा। उसके बाद में आप कोई उसको मूवमेंट करने के लिए बोल रहे हो, तो सपोज एक टेस्ट, सपोज आप प्रोनेटेड फुट है उसको आप बोल रहे हो कि स्क्वाट करो, पुल अप करो, तो ये आपका हो गया टेस्ट आ गया। टेस्ट में क्या करते हैं हम, जो मूवमेंट है वो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट है वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। तो टेस्ट का मतलब है टू गॉज द एबिलिटी। मीन्स टेस्ट ऐसे होने चाहिए अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन और प्रॉब्लम और प्रैक्टिकल टास्क दैट टेस्ट योर एबिलिटी। तो आपके जो भी टेस्ट सीक्वेंस में होने चाहिए कि जो आपकी एबिलिटी है वो चेक करे कि आप सपोज इसमें आप फिगर्स में दे सकते हो कि आप सपोज पुल अप कर सकते हो कि नहीं, 10 पुल अप टेस्ट, 5 पुल अप टेस्ट, तो एक बेसिक एबिलिटी टेस्ट। उसके बाद है असेस। असेस का मतलब है कि सपोज आप पुल अप नहीं कर रहे हो, व्हाई यू आर नॉट एबल टू परफॉर्मिंग अ करेक्ट पुल अप, तो ये हो गया आपका असेसमेंट। तो असेसमेंट में आप क्या देख रहे हो, टू एस्टिमेट द इनएबिलिटी। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बार बार आपका एग्जामिनेशन में यूज होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्क्रीन, टेस्ट एंड असेस। Aim of screening. So when you are dealing with the sports person, your primary objective of screening is to screen for the condition that may be predispose your life threatening or illness. Second one is your primary objective is to screen for the undiagnosed injury or illness. और third one is to determine the general health. ये जो आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, एक तो एथलीट्स में जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशनिंग है या इलनेस है वो आपको वेरीफाइड करना है, प्रिवेंट करने के लिए आपको स्क्रीनिंग का करना चाहिए। सेकंड चीज है कि अगर आपको कोई इंजरी है कि नहीं, कोई इलनेस है कि नहीं, उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए, और ये इंजरी इन फ्यूचर में आप सर्टेन एस्पेक्ट तक उसको प्रिवेंट कर सको, उसके लिए आपको ये स्क्रीनिंग का इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट है एम ऑफ स्क्रीनिंग। आप लोगों ने ऑल यू आर नो अवेयर अबाउट द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज इन जनरल पॉपुलेशन। हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर भी बेनिफिट पता है, लिपिड प्रोफाइल के ऊपर, आपके वेट मैनेजमेंट के ऊपर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर, तो सारे बेनिफिट्स है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप इन एथलेटिक पॉपुलेशन में देखा जाए तो so many published articles shows that the sudden cardiac death, a ratio of 1 to 40,000 or 1 to 80,000 in athletic population may be due to the undiagnosed cardiovascular abnormalities. उसकी वजह से ये एथलेटिक्स में सडन कार्डियक डेथ देखने को मिलता है एथलेटिक पॉपुलेशन में। तो उसका जो मेन कॉज है, तो एक तो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी और दूसरा होता है कि एक्वायर्ड एब्नॉर्मलिटी। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज में जो मेन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ वाज बिकॉज ऑफ ड्यू टू द hypertrophic cardiac myopathy. Approximately 36 to 48% was death occurred due to the hypertrophic cardiac myopathy. Second one cause is valvular heart disease, even left ventricular hypertrophy, Marfan syndromes, okay, coronary artery disease. ये सब सारी चीजें जो common cause of death है. Second one is to ensure the optimal medical health. You can identify the
pre-medical condition or medical condition of your athletes with the use of proper pre-participation examination and screening tools. Ensure optimal musculoskeletal health. Optimize performance in form of nutrition, psychology, and biomechanics. So you can check the data or with the use of some psychological questionnaire form or even nutritional intake values of food. So you can collect all the information from your athletes. So when for the evaluation or any assessment, you can revise your data and do the necessary information or necessary action according to the pre-participation examination outline. Definitely prevent injury. अगर musculoskeletal screening की हम बात करें तो if you are doing the screening in form of posture, dynamic movement assessment, then specific clinical assessment. If you see your athletes shows some sport specific adaptation, if you are working with the over sports like tennis player or even volleyball players or badminton players, so they have a common scenario of dominant infraspinal stress atrophy or even sometimes scapular dysfunction. So you can examine them, plan particularly rehabilitation session in their training session, so which can minimize the shoulder injury or sport specific injury in future. Review medication and vaccination. We already discussed about the baseline data like routine blood examination, routine urine checkup. Examination will help to build up with professional relationship with athletes and education. So when and where examination, when you should plan a pre-participation examination. So many articles in particularly research field of sports says that a minimum 6 weeks before the athlete sports season, examination will be carried out. ये जो ड्यूरेशन क्यों आपने 6 weeks प्लान किया है, तो before the athletic season, sports season, if you identified any undiscovered problem, maybe during the examination process, so at least the 6 weeks time, the athletes will be able to clear the minimal deformities or minimal problem and finally get the clearance from the medical personnel for the sports season. तो ये जो 6 weeks का ड्यूरेशन इसलिए कि कोई भी अनडिस्कवर्ड प्रॉब्लम हुआ तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और सपोज कोई माइनर इश्यू है तो उसको आप इन फॉर्म ऑफ रिहेबिलिटेशन और क्लिनिकल सिनेरियो पे आप उसको करेक्ट करके एंड यू कैन गेट द क्लियरेंस फ्रॉम द कंपटीशन. अगेन इसमें एक इंडिकेशन और है, सपोज आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया और आपका जो भी प्री पार्टिसिपेशन एग्जामिनेशन है ग्रीन लाइट है कि आप क्लियर हो, और इन बिटवीन आपको 6 weeks में बिफोर द कंपटीशन और 6 weeks में आपको अगर कोई इंजरी या फिर कोई इलनेस हो रही है, तो प्लीज बी श्योर दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथलीट्स और इवन पेरेंट्स at least to communicate it with your team member, coach, even physiotherapist or medical personnel if available, so they can identify your problem and solve it. So इसलिए एक 6 week का period है where the pre-participation examination will be conducted. नॉर्मल सिनारियो में 2 स्टेशन होते हैं, एक तो ऑफिस बेस्ड असेसमेंट, सेकंड वन इज स्टेशन बेस्ड असेसमेंट. बोथ हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ऑफिस बेस्ड असेसमेंट का मतलब है कि कोई भी एथलीट्स क्लिनिकल बेस पे गया, वहां पे आपने उसको क्लिनिकल सेटिंग में जो टीम मेडिकल डॉक्टर है, इवन स्पोर्ट्स फिजिशियन है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट है, वो आपको स्पेसिफिक क्लिनिकल इवैल्यूएशन वहां पे नोटिस करता है. और स्टेशन बेस है कि आपने एक सेंटर्स में स्टेशन प्लान किए, सपोज जनरल इंफॉर्मेशन स्टेशन, जनरल पैरामीटर चेकअप, उसके बाद में जनरल मेडिकल रूटीन चेकअप, आई एग्जामिनेशन, रेंज ऑफ मोशन एनालिसिस, फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग टेस्टिंग, स्पोर्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग. तो ये जो स्टेशन बेस करते हैं उसमें आप पूरी टीम को भी इन्वॉल्व कर सकते हो और टाइम सेविंग भी ये प्रोसीजर है. तो दोनों मेथड यूज होती है, ऑफिस बेस्ड और स्टेशन बेस्ड. Okay, so
You can see the slide about for the pre-participation examination shows a series of subtype of testing, means series of testing which primarily a medical examination by the medical professional or physician, done by the musculoskeletal examination will be carried out by the sports physiotherapist or team sports physiotherapist, and sports specific assessment. You can take the help from the athletic trainer or even coach to design the sport specific test or drill if required. A medical examination. So why we are discussing this thing with the physiotherapy aspect, medical examination? Because in many time when you are accompanied with the trim, so you are the first line medical professional to deal with your athletes or clients. So athletes, you should know the medical procedure or even examination procedure, how the team sports physician or medical officer will carry it out. तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए एग्जामिनेशन प्रोसीजर अगर आप टीम के साथ वर्क कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हिस्ट्री आप सबको पता ही है कि नॉर्मल क्लिनिकल सिनारियो में व्हेन वी आर डीलिंग विद द पेशेंट वी टेक द हिस्ट्री मींस इन फॉर्म ऑफ athletes or even patient word, personal history, family history, even types of sports, even sports training, age, vaccination, even medication or supplement if he or she is taking. So history alone has been shown to lead to the diagnosis of most medical and musculoskeletal screening. आप हिस्ट्री से आइडेंटिफाइड कर सकते हो कि उसको कोई साइलेंट फीचर्स है कि नहीं, उसको रेड फ्लैग साइन है कि नहीं, येलो फ्लैग लाइन है कि नहीं. तो हिस्ट्री में आपको पर्टिकुलरली मेडिकल हिस्ट्री में एक्सरसाइज इंड्यूस साइन को, प्री साइन को, चेस्ट पेन, लाइट हेडनेक्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, वो सारी चीज आपको क्वेश्चनरी फॉर्म पे आइडेंटिफाइड करनी है कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आपके एथलीट्स को इसमें से कोई डिफिकल्टीज हो रही है, डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, तो वो सब चीज आइडेंटिफाइड करनी है. हिस्ट्री के लिए काफी फॉर्म्स अवेलेबल है. यू कैन डाउनलोड द फॉर्म फ्रॉम पेंसिल्वेनिया स्कूल एंड इंटर यूनिवर्सिटी वेबसाइट. यू कैन डाउनलोड फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन. सो ऐसे काफी हिस्ट्री फॉर्म्स के लिए आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो. और यू कैन इवन डिजाइन योर ओन फॉर्म फॉर द हिस्ट्री. After the history, go for the physical examination. The physical examination again will be carried out by the medical personnel or team physician. तो physical examination में normally generally scenario में doctors medical personnel क्या plan करते हैं? तो check the vital sign, आपका suppose blood pressure, okay, pulse, respiratory rate, general parameter like height and weight. Then they are go for the auscultation and palpitation. Auscultation वो different position पालपेट को आपको पर्टिकुलरली चेक करते हैं, मीन स्टैंडिंग, सुपाइन विथ वाल्सल्वा वैन वगैरह. तो उसमें अगर आपको एब्नॉर्मल कार्डियक रिदम है या फिर मर्मर साउंड, वो आपको आइडेंटिफाइड हो सकती है फिजिकल एग्जामिनेशन में. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन गो फॉर द ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, मींस ईसीजी एट रेस्ट. इफ अगर आपका नॉर्मल फाइंडिंग है और बाकी सारी ऊपर हिस्ट्रीज वगैरह भी क्लियर है, तो देन फिट फॉर स्पोर्ट्स, मींस आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो गया. देन गो फॉर द सेकंड वन, स्क्रीनिंग, मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग. इफ योर ECG show some abnormal finding like abnormal heart rhythm or elongation of QT waves, then go for the further stepwise examination. आप ग्रेडेड एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट के बारे में सबको पता है कि उसमें ग्रेडेड एक्सरसाइज वे में आप स्ट्रेस के साथ में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मॉनिटरिंग होता है, आपका हार्ट रेट वेरिएबल्स वगैरह चेक हो गए. सेकंड वन इज हॉल्टर मॉनिटरिंग ऑन इकोकार्डियोग्राफी. ये दोनों चीजें वो काफी बार स्पोर्ट्स में यूज होती है. हमने भी अपने एथलीट्स में जब ECG वगैरह आपका एबनॉर्मल हार्ट रिदम शो करता है तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं हॉल्टर मॉनिटरिंग और इकोकार्डियोग्राफी. तो व्हाट इज द हॉल्टर मॉनिटरिंग? तो एक हॉल्टर मॉनिटरिंग इज डिवाइस जिससे आप पर्टिकुलरली टू मॉनिटर द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ऑफ योर हार्ट्स फॉर द 24 to 48 आवर्स. उसमें जो ECG रीडिंग होगा आपका,
वो आपका 24 to 48 आवर्स होगा। तो जब भी आप अगर आप एक्टिविटीज भी कर रहे हो तो भी जो हॉल्टर्स मॉनिटर है वो आपका ईसीजी एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद में आफ्टर 48 आवर्स doctor will find out if something abnormal rhythm is found during your activity or even during your specific movement or during your particularly rest। तो इससे आपको आइडेंटिफाइड पता चलता है कि कोई एक्सरसाइज इंड्यूस कोई स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं, इसलिए हॉल्टर मॉनिटरिंग यूजफुल होता है। अगेन अगर उसमें भी abnormalities आती है देन गो फॉर द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट और टीम स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट वो है मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग, कि जहां पे आप एक लेड लेके उसको स्क्रीनिंग कर रहे हो और जो मेजोरिटी ऑफ इंजरीज आपको पता है कि एथलीट्स में जो कैरियर उसको कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी भी बोल सकते हो और कैरियर स्टॉपिंग इंजरी भी बोल सकते हो, तो आप उसको कैसे मिनिमाइज करोगे और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो ये आपके असेसमेंट के ऊपर डिपेंड है। So musculoskeletal assessment has a series of assessment which include the history, again personal, family and sports. Okay. You can take the past history of illness, it means swelling in form of past injury or past swelling. He or she may be unable to participate in particular sports, so identified the cause for the restriction of sports. Mention the number of days, the family history, and even this particularly sport specific history. Second one is physical examination. So normal skill, जो sports specific assessment में physical examination में हम क्या करते हैं, ideally first after the history we go for the postural screening, then active and passive range of movement, then go for the dynamic movement testing, means functional movement screening, even required for strength and specific proprioception testing. On base of this information, you can plan the clinical examination of the individual joints, even individual separate particular area to emphasize the more evaluation. Posture. So all we know about the routine clinical postural evaluation. So जो observational evaluation to identify the body alignment in different views, हम क्या करते हैं उसमें, सपोज एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लेटरली, ये तीनों व्यूज में एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी या बॉडी अलाइनमेंट उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक अ फॉरवर्डेड पोस्चर, नी कोलैप्स मींस नी वाल्गस, स्कोलियोसिस, प्रोनेटेड फीट, तो ये सारी चीजें वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड चीज, हम ऑब्जर्वेशनल और पाल्पेशन से सिमेट्री है कि नहीं मसल्स में, एट्रोफी है, स्वेलिंग है, ओके, हाइपरट्रॉफी है, या फिर उसको आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कि मसल गार्डनिंग है, वो हम उसको पाल्पेशन से ऑब्जर्व या मींस आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो एक पोस्चरल मींस बेसिक असेसमेंट है। एक आप अगर स्पोर्ट्स के साथ में वर्क कर रहे हो तो एक जो कॉमन अल्टरेशन और आप उसको स्पोर्ट स्पेसिफिक एडेप्टेशन आपको डेफिनेटली आपको मेनी एथलीट्स में ऐसा फाइंड आउट होगा। तो द फिगर ऑन फर्स्ट फिगर इज वॉलीबॉल प्लेयर, he is playing the volleyball since last 4 years. You can see the classical atrophy on the infraspinatus muscle and even you can see the scapular dyskinesia. उसको हमने जब आइडेंटिफाइड किया था, इवन एग्जामिनेशन रूटीन स्क्रीनिंग में किया था, तो उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन एक स्पॉट स्पेसिफिक एडेप्टेशन और अल्टरेशन जो एक स्पेसिफिक मूवमेंट और स्पेसिफिक ट्रेनिंग की वजह से यू कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक अल्टरेशन। क्योंकि ये जो वॉलीबॉल प्लेयर्स है, सपोज अगर 500 बॉल्स पर डे और पर सेशन वो हिट कर रहा है, तो अगर आपका क्यूमुलेटिव लोड की वजह से एक स्पॉट स्पेसिफिक एडेप्टेशन होता है, तो उसको कैसे, अगर आपका जो एबनॉर्मल मूवमेंट पोजीशन है, अगर आपको मल्टीपल ईयर्स के लिए क्यूमुलेटिव हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली शोल्डर इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। तो आइडेंटिफाइड द स्पॉट स्पेसिफिक अल्टरेशन और स्पेसिफिक एडेप्टेशन एंड पर्टिकुलरली असेस एंड plan the rehabilitation program for the injury reduction or prevention in future aspect. So ये चीज important है। Second one, you can see the figure of scoliosis.
during the examination of the fencing we saw, because fencing is the unilateral sports, उसमें आपका मूवमेंट्स होगा तो वन साइड होगा डोमिनेंट, एक साइड के मसल ज़्यादा ओवर डेवलप हो गए कंपेरेटिवली टू द नॉन डोमिनेंट साइड। तो कंटिन्यूसली अगर आप अपने एथलीट्स को एजुकेट नहीं कर रहे हो और वो अगर लॉन्ग टाइम से परफॉर्म कर रहा है तो एक स्पेसिफिक एडेप्टेशन और यू कैन फाइंड द अल्टरेशन without any clinical significance or even clinical symptom. So please note and correct the alteration or specific adaptation and for the minimize of the injury. Okay, then after the posture check the functional movement screening. So what is the functional movement screening? So functional movement screening is a predictive system which consists of 7 fundamental movements which test your both mobility and stability. आप देख सकते हो कि जो 7 मूवमेंट्स है, डीप स्क्वाट, हर्डल स्टेप, इनलाइन लंज, शोल्डर मोबिलिटी पैटर्न, एक्टिव स्ट्रेट लेग रेज, ट्रंक स्टेबिलिटी पुशअप, रोटेटरी स्टेबिलिटी, ये जो 7 कंपोनेंट्स ऑफ मूवमेंट है उसमें आप दोनों मोबिलिटी साथ साथ में डायनेमिक स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। तो जो फर्स्ट जो 3 मूवमेंट्स है वो हायर लेवल मूवमेंट है, डीप स्क्वाट, हर्डल स्टेप एंड इनलाइन लंज, एंड जो लास्ट 4 मूवमेंट है मींस शोल्डर मोबिलिटी पैटर्न, एक्टिव स्ट्रेट लेग रेज, ट्रंक स्टेबिलिटी पुशअप्स और रोटेटरी स्टेबिलिटी, ये आपकी प्रिमिटिव मूवमेंट्स है। अब दूसरी चीज हम बात करें कि ये जो डिजाइन किया है पर्टिकुलरली डिजाइन बाय द ग्रे कुक, तो उसमें एक ऐसा सिनेरियो देखा गया है कि एफएमएस में व्हेन यू प्लान for the examination of these 7 fundamental movements, it will put the athletes in particularly extremely position if your muscle or asymmetry is particularly there, so it will be indicated deviation in movements। अगर आपका मसल इम्बैलेंस है, ओके, जॉइंट में कोई जॉइंट एबनॉर्मल अलाइन है तो उसमें आपका जो मूवमेंट पैटर्न होगी वो आपकी उसमें डिसफंक्शन शो करेगी। तो ये एक बेसिक असेसमेंट के लिए एक अच्छा डिजाइन टूल है। उसमें आप कैसे जा सकते हो? तो नॉर्मल है फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग। आप एक पिरामिड देख सकते हो, यू कैन सी द स्लाइड, पर्टिकुलरली फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग पिरामिड। तो जो परफॉर्मेंस पिरामिड में हम क्या पर्टिकुलरली पिरामिड होता है, तो आपकी जो मूवमेंट्स होती है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मीन्स कोई भी आपका जो कोई भी टीम में और इवेंट्स की बात कर लो, if your movement is strong, if your fundamental movement is good, then it will be minimize your particularly even trainings loads or even particularly trainings injuries। जो ट्रेनिंग इंजरीज होगी वो आपकी मिनिमाइज होगी। तो बेस बेस कहाँ से होता है कि क्वालिटी ऑफ मूवमेंट पे बेस होता है। उसके बाद में आप नेक्स्ट गो फॉर द ट्रेनिंग, देन गो फॉर द स्किल। तो ये जो आइडियल पिरामिड है तो आप उसमें देख सकते हो कि जैसे एफएमएस किया हमने, एक एंट्री पॉइंट है। एफएमएस स्कोर अगर आपका सारी मूवमेंट परफेक्ट है देन गो फॉर द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। उसके बाद में आप स्पेसिफिक स्पोर्ट स्पेसिफिक असेसमेंट यूज कर सकते हो, बाय बैलेंस टेस्ट यूज कर सकते हो, देन गो फॉर द स्किल टेस्टिंग। अगर एफएमएस में अगर आपका कोई भी मूवमेंट पैटर्न में पेन है तो देन गो फॉर द क्लिनिकल सिनेरियो। सपोज स्क्वाट कर रहे हो आप, उसमें नी पेन है, देन गो फॉर द कंप्लीट क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द नी। तो आपको नी को एग्जामिन करना पड़ेगा। सपोज आपको पेन नहीं है लेकिन मूवमेंट डिसफंक्शन है, देन गो फॉर द सिस्टेमिक फंक्शनल मूवमेंट असेसमेंट। टॉप टायर टेस्ट है, उसमें भी 7 ब्रेकआउट्स है, जैसे सर्वाइकल ब्रेकआउट, अपर एक्सट्रीमिटी ब्रेकआउट, मल्टी सेगमेंटल फ्लेक्शन ब्रेकआउट, मल्टी सेगमेंटल एक्सटेंसल ब्रेकआउट, उसके बाद में रोटेशनल ब्रेकआउट, सिंगल लेग स्टांस बैलेंस ब्रेकआउट, ऐसे ब्रेकआउट्स। उससे आप कौन सा इम्पेयरमेंट है वो फाइंड कर सकते हो। एक बेसिक प्रोसेस है। वैसे ये जो पूरा असेसमेंट है इट्स विल टेक अ लॉन्गर टाइम, मींस रिक्वायर अ फुल्ली डे। सो वी कैन जस्ट I will just brief the overview concept about the pre-participation examination and how the screening will conduct in sports. Okay, scoring। तो जो 7 कंपोनेंट मूवमेंट है उसमें स्कोर कैसे किया जाता है? तो जैसे स्कोर ऑफ 3, 2, 1 एंड 0। 3 का मतलब है कि
your athlete is able to perform the functional movement pattern without any disability, means unquestioned आप नॉर्मल मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो स्कोर ऑफ 3, स्कोर ऑफ 2 आप मूवमेंट तो परफॉर्म कर रहे हो लेकिन सम डिग्री ऑफ कंपेंसेशन इज नॉट एट, तो आपको स्कोर ऑफ 2 करना है, देना है। स्कोर ऑफ 1 मींस इनएबिलिटी टू परफॉर्म और कंप्लीट अ फंक्शनल मूवमेंट पैटर्न। आप डीप स्क्वाट है, ओवरहेड स्क्वाट से अगर फुल्ली स्क्वाट नहीं कर रहे हो, ठीक है, कंपेंसेशन भी है और फुल मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हो, देन गो फॉर द स्कोर 1। और अगर आपको सपोज ओवरहेड स्क्वाट्स कर रहे हो, उसमें अगर कोई भी पोजीशन में मूवमेंट्स में पेन है, देन आइडेंटिफाइड द 0, मींस आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल और क्लिनिकल बेस्ड असेसमेंट पहले प्लान करना चाहिए। तो ये नॉर्मल स्कोरिंग पैटर्न है 3 2 1 0। ओके, तो एक जो ये जो 7 कंपोनेंट ऑफ एग्जामिनेशन है, हायर लेवल मूवमेंट और प्रिमिटिव लेवल ऑफ मूवमेंट, तो मैं एक क्योंकि इसमें सारा एक ब्रीफ असेसमेंट है, तो एक हम एक एग्जांपल के तौर पे वी कैन डिस्कस द डीप स्क्वाट, हाउ द डीप स्क्वाट असेसमेंट विल टेक प्लेस इन फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग। तो आपको पता होगा कि जब आप डीप स्क्वाट कर रहे हो या फिर ओवरहेड स्क्वाट्स कर रहे हो, तो मींस डीप स्क्वाट टेस्ट इज डिजाइन्ड टू चैलेंज योर टोटल बॉडी मैकेनिक्स, to gauge your bilateral symmetrical mobility of hip, ankle, knee, even upper extremity। तो आपका हिप, नी, एंकल, लोअर एक्सट्रीमिटी, साथ साथ में अपर एक्सट्रीमिटी में मोबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों प्रॉपरली होना चाहिए, तभी आप प्रॉपरली उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो उसका जो पैरामीटर है कि अगर क्या क्या होना चाहिए, तो स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। अगर आपकी प्रॉपरली फ्लेक्सिबिलिटी होगी, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, तभी आप ये मूवमेंट प्रॉपरली परफॉर्म कर पाओगे। और इम्पोर्टेंट चीज इज न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। जब हम स्क्वाट असेसमेंट में अभी जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको उतना ध्यान रखना है कि, या फिर अगर आप नॉर्मल में भी उसको अगर आफ्टर द सेशन अगर आप अपना खुद असेसमेंट करके आप प्लान कर सकते हो कि मेरा कौन सा काइनेटिक चेक पॉइंट वीक है और कौन सा एरिया मेरा प्रॉपरली अलाइन नहीं है। So you can work first on your own, then go for the subjective examination for the if particular specific you can find any specific dysfunction or alignment। तो उसमें हमको काइनेटिक चेक पॉइंट में आपका फर्स्ट है कि अगर ओवरहेड मूवमेंट में आप स्क्वाट कर रहे हो तो चेक द शोल्डर मोबिलिटी एंड थोरेसिक स्पाइन मोबिलिटी। ओके, लंबो पेल्विक हिप कॉम्प्लेक्स, वो उसको आप रिदम को चेक करना है, देखना है आपका नी कैसे अलाइन, आपकी फीट की प्लेसमेंट क्या है, वो सारी चीज आपको एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू और लेटरल व्यू में आइडेंटिफाइड करनी है। तो जब आप नॉर्मल क्लिनिकल सिनेरियो में अगर आप डीप स्क्वाट इम्प्लीकेशन में जाओगे कि मूवमेंट इम्प्लीकेशन क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है, तो जो उसके जो कॉमनली लिमिटेशन है, एक तो लिमिटेड मोबिलिटी इन लोअर एक्सट्रीमिटी, पर्टिकुलरली close chain ankle dorsiflexion, close kinetic ankle dorsiflexion। Second one is limited mobility in your hip। ये दोनों चीज की अगर आपकी लिमिटेड मोबिलिटी है तो आपका मूवमेंट कंपेंसेशन होगा। ओके, सेकंड वन इज लिमिटेड मोबिलिटी अपर एक्सट्रीमिटी, मींस अगर आपका ग्लेनोह्यूमरल रिदम प्रॉपर नहीं है, थोरेसिक एक्सटेंशन, थोरेसिक मोबिलिटी आपकी सफिशिएंट नहीं है, तो आपको ये लिमिटेशन देखने को मिलेगी। थर्ड वन इज पुअर कोर और हिप स्टेबिलिटी कंट्रोल, अगर आपका जो कोर है और पेल्विक है वो स्टेबल नहीं है, तो आपको ये सब जो कंपेंसेशन और मूवमेंट इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा। फोर्थ वन इज क्वाड्रिसेप डोमिनेंट पैटर्न। कई लोगों को अगर आप अभी भी चेक करोगे तो ऐसा फाइंड आउट होगा कि जब हम स्क्वाट करते हैं तो पीछे की तरफ गिर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो वो पर्टिकुलर क्लाइंट है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि क्वाड्रिसेप डोमिनेंट पैटर्न, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेंथ रेशियो है क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग का, क्वाड्रिसेप हमारा 60% है, हैमस्ट्रिंग 40% है। ज्यादातर जो भी इंजरीज पर्टिकुलरली होती है तो पोस्टीरियर चेन में इंजरीज ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू द एंटीरियर चेन। तो हम उसमें बात करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। तो अगर आपका क्वाड्रिसेप डोमिनेंट पैटर्न है तो आपके क्वाड्रिसेप क्या करेंगे, जो आपके जो ग्लूट है, हैमस्ट्रिंग है, कोर है, इवन पोस्टीरियर चेन मस्कुलेचर से उसको वो पर्टिकुलर एक्टिवेट और एक टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि
उसको वो टेंशन से रिलीज नहीं करेंगे। एक क्वाड्रिसेप है उतना आपका टेंशन दे देगा कि आप जो पर्टिकुलरली ग्लूट है, कोर है और हैमस्ट्रिंग है वो उसको कंपेंसेट नहीं कर पाएंगे मूवमेंट के लिए, इसलिए आप कभी कभार पीछे की तरफ फॉल हो जाओगे। तो ऐसे इम्प्लीकेशन मूवमेंट में देखने को मिलते हैं। तो ये जो 3 व्यूज है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, तो एंटीरियर व्यू में जो नॉर्मल इम्प्लीकेशन, एबनॉर्मल कंपेंसेशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिगर है कि आपके जो नीज है वो आपके फीट से बाहर जा रहा है। सेकंड फिगर है जो एंटीरियर व्यू में आप उसको देख सकते हो कि डिड यू सी एनी एक्सटर्नल रोटेशन इन द फीट्स। थर्ड वन है कि नी कोलैप्स है, नी वाल्गस हो रहा है। पोस्टीरियर व्यू में आप देख सकते हो कि पर्टिकुलरली एसिमेट्री इन द मूवमेंट पैटर्न, उसमें जो पर्सन स्क्वाट कर रहा है तो एक ही साइड स्क्वाट कर रहा है, एक साइड वेट ज्यादा दे रहा है, दूसरी साइड कम दे रहा है। इसमें आप देख सकते हो सेकंड फिगर है पोस्टीरियर व्यू में प्रोनेटेड फीट, एंड थर्ड फिगर है लास्ट वन है पोस्टीरियर व्यू में कि हिल रेज। अगर आपके काफ में मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, पर्टिकुलर टेंडो एक्यूलिस टाइटनेस है, पोस्टीरियर चेन एक्टिवेट प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो उसको कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, मैं एक सिंपल एग्जांपल है उसके तौर पे आपको सभी शेयर करूंगा। कंटिन्यू, ये जो लेटरल कंपार्टमेंट है, लेटरल कंपार्टमेंट में आप क्या उसको व्यू कर सकते हो, एक तो एक्सैगरेटेड लंबर स्पाइन कर्वेचर, ओके, योर व्हेन यू आर डूइंग द स्क्वाट योर पोजीशन इज फॉरवर्डली, अगर आप आगे जा रहे हो तो ये 2-3 चीज आप लेटरल व्यू में एग्जामिन कर सकते हो। तो एक सिंपल स्क्वाट का ब्रेकआउट है कि उसको आप कैसे ब्रेकआउट कर सकते हो। सपोज किसी को प्रॉपर्ली स्क्वाट नहीं कर रहा है तो उसका कौन सा रीजन वीक है, तो आप एक ब्रेकआउट चार्ट है, जैसे सारे जो 7 कंपोनेंट्स मूवमेंट है सबका ब्रेकआउट्स, लेकिन हम इसको एग्जांपल तौर के ऊपर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे साथ साथ में। ओके, तो अगर आप देख सकते हो उसमें ओवरहेड डीप स्क्वाट पैटर्न ब्रेकआउट, अगर आपका ओवरहेड डीप स्क्वाट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, ठीक है, आपकी मूवमेंट कंपेंसेट हो रही है, तो आपको क्या करना है, देन गो फॉर द लिमिटेड ओवरहेड डीप स्क्वाट। तो आपको क्या करना है कि जो आपने जो एग्जांपल अभी देखा था, Sorry to interrupt you, Adik sir. I think, but does this document needs to be opened? Deep squat breakout dot. yes, overhead squatting pattern breakout, can you see it? No, Adik sir. Okay, once again I will say. Now is it visible? No sir. 1 minute. Okay, I can stop the screen and share the document. Yes, that will be fine. Now is it visible through you? Yes sir. ओके, तो हम अभी जो एक ब्रीफ जो एग्जांपल के तौर पे डीप ओवरहेड स्क्वाट्स मूवमेंट पैटर्न है उसको कैसे ब्रेकआउट कर सकते हैं, कि जो मूवमेंट इम्प्लीकेशन में अगर आपको कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग मिल रहे तो उसको हाउ यू कैन आइडेंटिफाइड और हाउ यू कैन गो थ्रू द पर्टिकुलरली सीक्वेंस वाइज ऑफ स्क्रीनिंग। तो अगर आपका स्क्वाटिंग पैटर्न एबनॉर्मल हो रहा है ओवरहेड स्क्वाट्स, तो देन गो फॉर द लिमिटेड ओवरहेड स्क्वाट्स मूवमेंट्स। उसमें क्या करना है कि जो आपकी जो पोजीशन होगी, आस्क योर एथलीट्स टू लॉक योर फिंगर बिहाइंड द नेक। तो आपको क्या करना है कि आपने जो अपर एक्सट्रीमिटी की मोबिलिटी है,
ठीक है, उसको आपने ओवरकम कर दिया, मीन्स वो आपका मिनिमाइज हो गए। तो जो शोल्डर ग्लेनोह्यूमरल मूवमेंट्स है, थोरेसिक एक्सटेंशन है, वो आपका वहां पे आइसोलेट हो गया। तो वो चीज आपने आइसोलेट कर दी। उसके बाद में आपने क्या किया, इंटरलॉक फिंगर बिहाइंड नेक डीप स्क्वाट, वो आप डीप स्क्वाट परफॉर्म कर रहे हो। इसमें अगर आपको 4 फाइंडिंग मिलेंगे, ये आपको यहाँ पे लिखा होगा DN, DP, FV और FN। उसका मतलब है DN डिसफंक्शनल विथ नॉन पेनफुल, आपकी मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो रही है, ठीक है, आपकी मूवमेंट एबनॉर्मल है, डेविएशन के साथ हो रही है, लेकिन कोई पेन नहीं है। सेकंड वन इज DP मींस डिसफंक्शनल विथ पेनफुल, आपकी मूवमेंट एबनॉर्मल है और साथ साथ में आपको पेन भी है कोई पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर जॉइंट या फिर पर्टिकुलर मसल या फिर लोकल पॉइंट्स। थर्ड वन इज FP मींस फंक्शनल मूवमेंट विथ पेनफुल, आपकी मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो वो फुल्ली करेक्ट है, प्रॉपर है, लेकिन आपको पेन है। और जो उसमें जो पर्टिकुलर ये मार्क पे इंडिकेट किया है वो है आपका FN फंक्शनल विथ नॉन पेनफुल। तो अगर आपका डीप स्क्वाट है, अगर आपका फंक्शनल विथ नॉन पेनफुल हो रहा है, तो उसका मतलब कि आपकी जो लोअर एक्सट्रीमिटी पैटर्न है, इवन पेल्विक है, कोर है, वो आपके सफिशिएंट स्टेबलाइज है, आपका मोटर कंट्रोल परफेक्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन गो फॉर द ग्लेनोह्यूमरल रिदम चेक, ओके, गो फॉर द थोरेसिक एक्सटेंशन। तो आपको एक्सटेंशन ब्रेकआउट है उसका, उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ग्लेनोह्यूमरल रिदम प्रॉपर्ली नहीं है, आपका थोरेसिक एक्सटेंशन प्रॉपर्ली नहीं है, उसकी वजह से आप प्रॉपर स्क्वाट नहीं कर पा रहे हो। तो ये हो गया। सपोज आपकी मूवमेंट है वो डिसफंक्शनल है, ठीक है, या फिर डिसफंक्शनल के साथ में पेन है और फंक्शनल मूवमेंट परफेक्ट है लेकिन पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको असिस्टेड स्क्वाट करना है। कोई पार्टनर्स हो उसके सपोर्ट में आप स्क्वाट परफॉर्म करके देखो। उसमें भी आपको सेम 4 सिनेरियो आइडेंटिफाइड करने हैं, ओके, FN, DN, DP, FV। FN का मतलब है कि फंक्शनल विथ नॉन पेनफुल, आपके असिस्टेड स्क्वाट्स परफेक्ट हो रहे हैं। तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने सपोर्ट लिया है, उसका मतलब कि आपकी मोबिलिटीज तो ठीक है, लेकिन एक आपका एक SMCD उसको बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल मोटर कंट्रोल डिसफंक्शन। आपने यहाँ पे एक जो वर्ड है यहाँ पे देखा होगा SMCD, कोर SMCD मींस आपका जो स्ट्रक्चर नहीं, स्टेबिलिटी मोटर कंट्रोल डिसफंक्शन। ये जो आपकी जो कोर की स्टेबिलिटी है वो वीक है, उसकी वजह से आप प्रॉपर्ली इंटरलॉक्ड फिंगर बिहाइंड नेक स्क्वाट नहीं कर रहे हो, असिस्टेड स्क्वाट इसलिए आप परफेक्ट कर सकते हो बिकॉज आपने सपोर्ट ले लिया। तो ये कोर SMCD, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपके जो मल्टी सेगमेंटल एक्सटेंशन ब्रेकआउट है, कोर का ब्रेकआउट से, उसमें फिर आपको वेरिएट करना पड़ेगा कौन सी लीक मेरी वीक है, जो स्टेबिलिटी मोटर कंट्रोल डिसफंक्शन है कौन सा वीक है, ठीक है। तो उसके अगर हम डिटेल में प्लान करेंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम पूरा उसका असेसमेंट का पूरा प्लान करेंगे। अगर असिस्टेड स्क्वाट्स में आपने आइडेंटिफाइड किया कि उसको डिसफंक्शनल विथ सपोज नॉन पेनफुल है या फिर पेन हो रहा है या फिर मूवमेंट परफेक्ट है लेकिन पेन है, देन गो फॉर द, अब आपको क्या करना है, आपको मोबिलिटी चेक करनी है, हाफ नीलिंग डॉर्सिफ्लेक्शन। तो आप हाफ नीलिंग पोजीशनिंग में गए और डॉर्सिफ्लेक्शन आपने एथलीट्स का चेक किया, उसमें अगर डिसफंक्शनल हो रहा है, डिसफंक्शनल विथ नॉन पेनफुल, तो उसमें जो पर्टिकुलरली आपको आइडेंटिफाइड होगा कि एक जो डिसफंक्शन होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा क्योंकि ये बार बार चीज जो भी असेसमेंट होगा उसमें आपको हेल्पफुल होगी। तो डिसफंक्शन 3 टाइप्स के डिसफंक्शन होते हैं। एक तो फर्स्ट होता है कि कंजेनाइटल डिसफंक्शन, आपका जो बाय बर्थ आपको पर्टिकुलरली एबनॉर्मलिटीज है, सपोज फ्यूजन है, ठीक है, उसकी वजह से डिसफंक्शन हो रहा है, तो उसका कंजेनाइटल डिसफंक्शन। सेकंड है एक्वायर्ड डिसफंक्शन, मींस कोई पर्टिकुलर चीज के हुआ है या फिर कंपेंसेशन की वजह से हुआ है, वीकनेस की वजह से हुआ है, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिसफंक्शन। थर्ड चीज है कि ट्रॉमेटिक डिसफंक्शन, कोई इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, उसकी वजह से डिसफंक्शन। तो ये जो कॉमन जो डिसफंक्शन के जो क्लासिफिकेशन है वो 3 है। उसमें भी अगर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा कि मस्कुलर डिसफंक्शन है, तो उसको हम बात करेंगे कि भाई टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी डिसफंक्शन, उसमें भी सेकंड वन आएगा कि स्टेबिलिटी मोटर कंट्रोल डिसफंक्शन। फिर सब और कैटेगरीज में आएगा कि
जॉइंट डिसफंक्शन, आपका जॉइंट सपोज ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस है, स्पाइनल सपोज फ्यूजन है, वो सब आएगा जॉइंट डिसफंक्शन में। तो एक टर्मिनोलॉजी है, उसके ऊपर भी हम पूरा डिस्कस करेंगे, प्लान करेंगे वेबिनार और अरेंज करने का। तो एक नॉर्मल है, अगर आपका डीएन आया मींस डिसफंक्शनल विथ नॉन पेनफुल है, हाफ नीलिंग में, डिसफंक्शन है, पेन नहीं है, तो उसका मतलब कि आपकी कहीं ना कहीं एंकल मोबिलिटी कॉम्प्रेस है या फिर पोस्टीरियर चेन में आपको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर आपका ये परफेक्ट है मींस एफएन फंक्शनल विथ नॉन पेनफुल, फंक्शनल विथ पेनफुल और डीपी, तो ये पोजीशन आपको परफेक्ट नहीं है, देन गो फॉर द सुपाइन नी टू चेस्ट। तो ये जो सारी पोजीशन है हम मोबिलिटी चेक कर रहे हैं। हमने असिस्टेड स्क्वाट किया तो उससे जो स्टेबिलिटी मोटर कंट्रोल डिसफंक्शन था वो हमने आइडेंटिफाइड किया। सुपाइन नी टू चेस्ट में हमने सेम आइडेंटिफाइड किया कि कौन सा एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो ये सारे ब्रेकआउट्स है कि आपको कैसे प्लान करना है और कौन सा एरिया वीक हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर गो फॉर द स्पेसिफिक क्लिनिकल असेसमेंट। अगर आपको लग रहा है कि जब एथलीट स्क्वाट कर रहा है तो उसके हिल रेज हो रहे, देन गो फॉर द लोअर एक्सट्रीमिटी मोबिलिटी स्क्रीनिंग। उसमें आपको सपोज हिप मोबिलिटी आप चेक कर सकते हो, उसके बाद में फिर एंकल मोबिलिटी चेक कर सकते हो, देन गो फॉर द टाइटनेस असेसमेंट। तो ये जो कॉमन असेसमेंट है। एक दूसरी चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक जॉइंट टू जॉइंट अप्रोच है कि जब भी आप कोई भी असेसमेंट प्लान करो, इवन ट्रीटमेंट प्लान करो या फिर इवन रिहेबिलिटेशन सेशन प्लान करो, तो एक जॉइंट टू जॉइंट अप्रोच है कि नॉर्मल क्लिनिकल सिनेरियो में काफी यूज होता है। जैसे एंकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलिटी, आपका जो एंकल है उसमें आपको मोबिलिटी खास चेक करनी है और खास आपका वो पर्टिकुलरली उसके ऊपर फोकस करना है। अगर आपकी एंकल की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होगी देन डेफिनेटली योर एथलीट्स विल बी प्रोन फॉर द नी इंजरी। अगर आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होगी एंकल की तो आपको नी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएगी। तो जैसे एंकल मोबाइल है वैसे आपका नी कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। एंकल मोबाइल, नी स्टेबल। जब भी नी का असेसमेंट करो तो नी में फर्स्ट आप स्टेबिलिटी खास चेक करो। इफ यू आर वर्किंग ऑन स्टेबिलिटी ऑन नी देन इट विल मिनिमाइज द नी इंजरी एंड इवन लोअर एक्सट्रीमिटी इंजरी। ठीक है, देन गो फॉर द हिप। हिप में क्या होगा, हिप इज मोबाइल, आपका हिप मोबाइल होना चाहिए। अगर वो आपका टाइट है तो आपको लोअर लंबर स्पाइन, लंबर इंजरी होने के चांसेस रहेंगे और फिर नी इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। उसके फिर आपका जो पेल्विक है, लंबर स्पाइन है, वो कैसा होना चाहिए, वो आपका स्टेबल होना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी हमारे जो रॉन्ग मूवमेंट पैटर्न होती है, इवन आप स्क्वाट देख लो, स्क्वाट ऐसी मूवमेंट है ना, एक डेली एक्टिविटी मूवमेंट है। कोई भी आप ट्रेनिंग करोगे, ठीक है, कोई भी कंडीशनिंग करोगे, कोई भी इवन ड्रिल्स करोगे, तो ये जो सारी जो 7 कंपोनेंट मूवमेंट है एक एसेंशियल मूवमेंट है। जैसे स्क्वाट है, ठीक है, हमारे डेली एक्टिविटी में स्क्वाट्स होता है। आप लंच कर रहे हो, इनलाइन लंच, आप स्टेयर चल रहे हो, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, वन स्टेप आप अप ले रहे हो, दूसरा मींस यूनिलेटरल मूवमेंट है, उसमें यूनिलेटरल स्टेबिलिटी आपका फोकस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज ऐसे डिजाइन की है कि जो आपके पर्टिकुलरली डेली रूटीन में भी है, डेली कंपेंसेशन में भी और डेली ट्रेनिंग कंडीशनिंग में भी है। आप हर्डल स्टेप बात कर सकते हो, जब हम डिसेलरेशन फेज में जाते हैं, एक्सेलरेशन फेज में जाते हैं, इवन वॉकिंग फेज की हम बात करें तो आपका उसमें डबल सपोर्ट रहता है वॉकिंग फेज में, जैसे रनिंग फेज में डबल सपोर्ट नहीं है। तो वो चीज में आपका पूरा वेट एक स्विंग में रहेगा, एक एयर में रहेगा, दूसरा आपका ग्राउंड क्लियरेंस पे जाएगा। तो सेम है आपका उसमें हर्डल स्टेप में, फिर शोल्डर मोबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, पुशअप्स है। तो ये सारी जो मूवमेंट कंपोनेंट है वो डेली एक्टिविटी में यूज हो रहा है। लेकिन अगर आप स्क्वाट कर रहे हो, अगर आपकी हिप मोबिलिटी प्रॉपर्ली नहीं है तो क्या करोगे आप जो मूवमेंट कर रहे हो लोअर बैक से मूवमेंट कर रहे हो, जबकि लोअर बैक का जो गॉड ने डिजाइन किया है वो स्टेबिलिटी के लिए है, स्टेबिलिटी के लिए किया है, और आप मूवमेंट कर रहे हो लोअर बैक से, तो इट विल बी ट्रिगर योर लोअर बैक एंड इट विल बी द मेन कल्प्रिट फॉर द लोअर बैक पेन। तो लोअर बैक क्या होना चाहिए, आपका पर्टिकुलरली स्टेबल होना चाहिए। उसके ऊपर आप जाओगे कि थोरेसिक स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन आपका मोबाइल होना चाहिए। हम इवन नॉर्मल क्लिनिकल सेटिंग में भी आप देख सकते हो कि जो शोल्डर इवन एडेसिव कैप्सुलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर के केसेस ज्यादा मिल रहे, उसमें अगर आप थोरेसिक स्पाइन चेक करोगे तो आपको डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी मिलेगा। देन गो वर्क फॉर द इवन थोरेसिक मोबिलिटी। आप थोरेसिक मोबिलिटी के ऊपर वर्क करोगे तो आपकी जो रेंज है ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगी। तो एक चीज है कि उसमें आपका थोरेसिक मोबिलिटी मोबाइल होना चाहिए। देन गो फॉर द मींस स्कैपुला, स्कैपुला क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो ये नॉर्मल जॉइंट टू जॉइंट क्लिनिकल सिनेरियो हो
तो ये जो भी असेसमेंट हो इवन रिहैब प्लान है उसमें एक बेसिक कंसेप्ट है कि आपको कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हो। ये जो सेम जो 4 कंपोनेंट हमने बार बार यहाँ पे डिस्कस किए FN, FP, DP और DN, उसका भी आफ्टर द असेसमेंट यू कैन प्लान दिस 4 कंपोनेंट ऑन योर रिहेबिलिटेशन और इवन प्रीहेबिलिटेशन गोल्स एंड प्लान। सपोज आपका FP है मींस फंक्शनल विद पेनफुल, आप पर्टिकुलरली परफॉर्म कर रहे हो लेकिन पेन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेन को, आपकी मूवमेंट क्वालिटी परफेक्ट है लेकिन पेन है, तो आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ पेन। ओके, तो उसमें आप सपोज पेन को कम करने के लिए मोडालिटीज भी यूज कर सकते हो। ओके, इवन मोबिलाइजेशन भी यूज कर सकते हो, जो डिफरेंट थेराप्यूटिक्स अप्रोच है वो आप प्लान कर सकते हो। उसमें अब बात करेंगे कि FN फंक्शनल विथ नॉन पेनफुल है मींस कंप्लीट है, आप गो फॉर द ग्रीन लाइट। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ असेसमेंट और इवन फॉर द ट्रेनिंग। से गाया DP मींस डिसफंक्शनल विथ पेनफुल है, तो डिसफंक्शन भी है पेनफुल पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिसफंक्शन है उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा और पेन को भी मिनिमाइज करना पड़ेगा, पॉजिटिव फैक्टर है वो भी आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा और उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। तो उसके डिसफंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन है, मोबिलाइजेशन है, करेक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम है वो डिजाइन करना पड़ेगा। पेन के लिए आप सपोज मोडालिटीज वगैरह यूज कर सकते हो। अब किसी का आइडेंटिफाइड हुआ है फिर DN डिसफंक्शनल विथ नॉन पेनफुल, उसको नॉन पेन है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें करेक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम आप मैनिपुलेट करो, उसको मोबिलाइज करो, पैटर्न को करेक्ट करो, फिर उसको आप एक्टिवेट करते रहो कोई भी पैटर्न को जिसमें आपको मूवमेंट कंपेंसेशन एसिमेट्री है उसको कंप्लीट करते रहो। तो ये है DN। तो ये 4 चीजें एक आपके रिहैब के लिए भी, असेसमेंट के लिए भी और इवन प्रोग्रामिंग के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Okay, then we can now go for our slide, main slide. हमने FMS स्क्रीनिंग का जो एक एग्जांपल दिया, वैसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है सेम वे में वैसे ही होता है कि स्कोर ऑफ 3, 2, 1, 0, उसमें भी अलग अलग ब्रेकआउट्स है, लेकिन उसके लिए हमको पूरा फुल डे उसके लिए वेबिनार और सेमिनार्स होते हैं। तो 1 आवर्स में हम उसको ओवरव्यू प्लान किया था कैसे एग्जामिनेशन प्रोसेस कैरिड आउट होती है, और एक एग्जांपल तौर के ऊपर हाउ वी कैन प्लान टू असेस द डीप स्क्वाट मूवमेंट पैटर्न इन क्लिनिकल सिनेरियो और इवन पर्टिकुलर द स्पॉट स्पेसिफिक स्क्रीनिंग। उसके बाद में जो कंपोनेंट है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो ये जो फिजिकल फिटनेस है वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंस है कि जब सपोज कोई प्लेयर्स को इंजरी हो रही है तो एटलीस्ट यू शुड नो योर द बेसिक मींस प्रीवियस फिटनेस स्टेटस ऑफ योर प्लेयर टू आइडेंटिफाई द इवन fitness or even to plan your objective, even post fitness assessment, post injury assessment, even return to sports criteria। तो ये सारी चीज आपके रिकॉर्ड के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी को इंजरी हो रही है उसके बाद में आप उसको स्पेसिफिक टेस्टिंग जब क्लियरेंस पे जाओगे, इंजरी के बाद में रिहैब करोगे, उसके बाद रिटर्न टू स्पोर्ट्स क्राइटेरिया में जाओगे, तो बिफोर यू कैन गो विद द रिटर्न टू स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन एंड असेसमेंट, तो आपके साथ एक बेसिक डेटा होना चाहिए कि उसकी स्पीड क्या थी। ओके, 20 मीटर डैश टेस्ट यूज होता है, तो एक बेसिक यहाँ पे जो स्लाइड शेयर की हुई है बेसिक टेस्ट है। आप topendsports.com करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि एंड्योरेंस के लिए बीप टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है, कि 20 मिनट्स में आपको कैसे परफॉर्म करना है। डिवाइस होती है बीप, वो कंटिन्यूसली जो साउंड है वो इंक्रीज होते रहते हैं, आपको कंटिन्यूसली रन करना है। तो कौन से स्टेज में आप स्टॉप होते हो वहां से फिर आपको VO2 मैक्स आपका उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। तो बीप टेस्ट है, 12 मिनट कूपर टेस्ट है, सेम उसमें वे में आपको 12 मिनट कंटिन्यूस लैप करने हैं। 12 मिनट में आप कितने लैप्स कर रहे हो, कितना माइल आपने रन किया, जॉग किया, वॉक किया, वो आपको आइडेंटिफाइड करना है और उसमें सेम टेबल में आपको कोरिलेट करना है कि VO2 मैक्स के लिए। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए पुल अप से, सिट अप से, पुश अप से, सिट अप, चिन अप से,
वो आप प्लान कर सकते हो। ओके, स्पीड के लिए 20 मीटर डैश टेस्ट है, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट है, तो उसमें एथलीट्स का एक्सेलरेशन क्या है, डिसेलरेशन क्या है, ओके, स्टार्टिंग स्पीड क्या है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पावर एंड एक्सप्लोसिव के लिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, ओवरहेड मेडिसिन बॉल थ्रो है, वो कॉमनली यूज होता है। एजिलिटी के लिए टी टेस्ट है, इवन स्पोर्ट स्पेसिफिक 6393 639 वॉलीबॉल के लिए यूज होता है। ऐसे काफी सारे टेस्ट हैं, यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू द प्लेयर्स डिमांड और इवन द नेचर ऑफ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स डिमांड, आप उसमें स्पेसिफिक वेरिएबिलिटी भी ऐड कर सकते हो। बैलेंस के लिए सिंगल, ओके, स्टार एक्सर्शन बैलेंस टेस्ट, डायनेमिक वाई बैलेंस टेस्ट, वो चीज चेक कर सकते हो। देन बॉडी कंपोजिशन, ओके, स्किन फोल्ड, स्किन इम्पीडेंस, ओके, बायोइलेक्ट्रिकल स्किन इम्पीडेंस है, तो यहाँ पे आप अपना प्लेयर्स का स्टेटस क्या है, मीन्स परसेंटेज ऑफ फैट, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, परसेंटेज ऑफ वाटर, मिनरल्स क्या है, बॉडी का रेजिस्टेंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट्स क्या है, मसल्स में कितना फैट्स है, विजरल फैट कितना है, स्किन फैट्स कितना है, वो आप प्लान कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू देम आप उसका डाइट, बैलेंस डाइट प्लान कर सकते हो। साथ साथ में कि सिलेक्शन ऑफ एथलीट्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेयर्स का बॉडी कंपोजिशन क्या है, प्लेयर्स की पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका कंपोजिशन है वो आप उसको प्लान कर सकते हो। ओके, लास्ट चीज है, अगर आपका फुल एग्जामिनेशन हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन, मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग एंड उसके बाद में आपका स्पोर्ट स्पेसिफिक, देन गो फॉर द फॉर्मल क्लियरेंस। ग्रीन लाइट मींस क्लियर फॉर ऑल एक्टिविटी विदाउट रिस्ट्रिक्शन। सेकंड वन इज क्लियर्ड विद रिकमेंडेशन फॉर फर्दर इवोल्यूशन और ट्रीटमेंट। आपको कहीं मिनिमाइज लग रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप उसको फर्दर इवोल्यूशन और ट्रीटमेंट के बाद में क्लियरेंस दे सकते हो। येलो वन इज नॉट क्लियर्ड, मींस स्टेटस टू बी रिकंसीडर आफ्टर फर्दर इवोल्यूशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन। इसलिए 6 वीक का मिनिमम हम प्रायर प्लान करते हैं कि अगर आपको कोई भी फर्दर इवोल्यूशन आपको कंसीडर करना है, या इफ यू आर प्लान फॉर द रिहेबिलिटेशन और प्रीहेब, देन completion of after your particularly rehabilitation, then go for the again examination. If he is cleared, then go for the activity. And last one is not cleared for certain types of sports or even for any particular specific sports. Suppose किसी का आई में प्रॉब्लम है, वन विजन है, तो डेफिनेटली वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपका एक आईज में है, सपोज बॉक्सिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अगर विजन प्रॉपरली नहीं है तो उसको लाइफ में भी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, तो इसमें आप रेड साइन वो आप इंडिकेट कर सकते हो। ओके, समरी है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो ये पूरा प्रेजेंटेशन का है उसका बेसिक समरी है। मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन, जनरल फिटनेस एंड स्पोर्ट स्पेसिफिक असेसमेंट एंड क्लियरेंस आउटकम, उसको कैसे हम प्लान कर सकते हैं, उसका जो स्टेप वाइज है, चेक इन हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद गो फॉर द एमएसके स्क्रीनिंग, जनरल फिटनेस एंड असेसमेंट, clearance outcome. So assessment will require a team approach for the even team medical doctor, physician, sports physiotherapist. You can take the help from your athletic trainer or even coaches for the specific sport specific assessment. Okay, so my part is over. Thank you so much. If you have any question, please feel free to ask. Thank you, Dr. Hardik Patel, for your very well explained presentation. Okay, we do have few questions. Okay, one of the question is how we can work on proprioception in boxing. Okay. What are the assessment strategy or? Okay, boxers में very good question. If you see the posture of boxers, तो अगर आप बॉक्सर का पोस्चर में अगर आप उसको शो करोगे, तो मेनली आपको आइडेंटिफाइड होगा कि जो बॉक्सर्स है वो आपको फॉरवर्ड हेड मिलेंगे, कि जो उनका जो थोरेसिक कर्वेचर है वो आपको राउंडेड मिलेगा, एक्सैगरेटेड हाइपोकाइपोसिस मिलेगा और साथ साथ में राउंडेड शोल्डर मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो पर्टिकुलरली वो एक एडवांटेज है उनके लिए कि उनके जो टारगेट है, इजीली वो टारगेट को अचीव कर सके, टारगेट को रीच कर सके, इसलिए वो पर्टिकुलरली ये पोस्चर अडॉप्ट करते हैं। तो एक बॉक्सर्स के लिए एक ये चीज मैं आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। एक चीज है कि प्रोप्रियोसेप्शन असेसमेंट के लिए, वेरी गुड क्वेश्चन। तो प्रोप्रियोसेप्शन असेसमेंट के लिए कि जैसे हमने एफएमएस का जो हमने ब्रेकआउट्स अभी ब्रीफली डिस्कस नहीं किया है, एक सिंपल तौर पे एग्जामिनेशन दिया था। आप बॉक्सर्स में, बॉक्सर का पर्टिकुलरली जो आपका प्रोप्रियोसेप्शन शोल्डर में जो मेजोरिटी ऑफ जो कॉन्टैक्ट्स और इवन नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी होती है तो शोल्डर में होती है, और फिर आपका जो
पर्टिकुलरली कॉन्टेक्ट इंजरी होती है, वो इवन फुल बॉडी में भी हो सकती है, जैसे एब्डोमिनल से उसमें भी होती है। तो मेन चीज, 1 minute, I think I have a problem in my battery, so 1 minute. Okay. Now the laptop is charging. So जो प्रोप्रियोसेप्शन हम चेक करने के लिए बात कर सकते हैं, तो आप उसको प्रोप्रियोसेप्शन के लिए ऑन बॉडी वेट, जैसे क्लोज काइनेमेटिक मूवमेंट में आप उसको एक डायनेमिक वाई बैलेंस टेस्ट है अपर एक्सट्रीमिटी के लिए, उसको आप प्लान कर सकते हो और दोनों साइड कंपेयर कर सकते हो। सेकंड चीज कि आप इंक्लाइनोमीटर है या फिर गोनियोमीटर है, उससे आप जो जॉइंट पोजीशन एरर है उससे आप उसकी मूवमेंट्स वगैरह प्लान कर सकते हो कि आप कोई रेंज में ले गए, उसके बाद में आपने होल्ड किया, उसके बाद आप आईज क्लोज करवा दो बॉक्सर्स की या आपके एथलीट्स के, उसके बाद में आप उसको कमांड करो कि आपको जो प्री पोजीशन में ले आपको शोल्डर में रीच करना है या फिर मूवमेंट परफॉर्म करनी है, तो वो आपका होगा प्रोप्रियोसेप्टिव असेसमेंट। कहाँ कितना एरर हो रहा है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट साइड। Okay, we have another question. Okay, being a sports physio, many times usually associations or the academies have single physio, right? Okay. And the number of players or the participants are too many. So the question is, how a sports physiotherapist can handle mass of players single-handedly? Okay. Very good question, because we already suffered from this situation. When the beginning of the academy, I am working from SAG since last 2014, and in 2014 we have approximately 80 to 90 athletes, and one I am alone to for the particularly assessment, even treatment plan. So that time what I will plan, first we are doing the medical examination by the medical personnel, so at least we can get the clearance for the physical activity. After that, that time we are doing the some specific screening. So I plan my means examination procedure on my way, means we identified the basic component of movement, like a squat. If he is able to squat, then your lower extremity is fine. Okay, normal squat position. तो अगर आप स्क्वाट कर रहे हो तो उसको आप एक मीन्स आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे सिनारियो में आप एक ग्रुप के साथ में भी, जैसे आपने आइडेंटिफाइड किया, यू कैन क्रिएट योर ग्रुप्स, सपोज अंडर 17 ग्रुप्स। तो उसमें एक जो रिसेंट कंसेप्ट है कि जो भी आप सपोज मूवमेंट आइडेंटिफाइड कर सकते हो, तो आप ऑन फील्ड में, इफ यू are working with your athletes, so go on the field and वो कौन सी मूवमेंट करते हैं। सपोज आप वार्म अप किया, ठीक है, तो वार्म अप एक ऐसा ड्रिल है कि जहाँ पे जनरल भी होगा, स्पेसिफिक भी होगा, तो आप उसके जो मूवमेंट्स, जो पैटर्न है, उसको आप इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हो। तो उसमें आपका टाइम सेविंग हो गया। ओके, हिप हिंज कर रहा है कि नहीं, कैसे लंच कर रहा है, पैटर्न क्या है, तो आप बेसिक नोटिफाइड करो, और जो रिस्क एथलीट्स है उसका फिर आप प्रॉपर्ली उसको इवेल्युएट करो। बाकी आप 7 कंपोनेंट पे जाओ, इनफ है, तो उससे आपको बेसिक हिंट मिल जाएगा। अगर उसमें आपको प्रॉब्लम है, देन गो फॉर द स्पेसिफिक। तो नॉर्मल सिनारियो में विद इन 5 to 10 मिनट्स में आप जो वार्म अप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उससे आपको डेफिनेटली आइडेंटिफाइड हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप में आप उसको कंसीडर कर सकते हो, इसके कंपैरिजन में उसका स्क्वाट कैसा है, इसके कंपैरिजन में इसका हिप हिंज कैसा है। तो ये सारी चीजें उसमें आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। Okay. I hope the participant who asked this question got the answer, and I hope he or she will be able to manage that way. Two more questions we have, and one of it is, if someone is having, suppose a player is there and he or she is having postural abnormalities from prolonged period of time, for an example 3 years or maybe 4 years. Okay, it was unidentified. Okay, now you have done the screening, fine. So whether we will be able to change those postural corrections or not, and how it is going to affect the performance. Okay, very good question. Even अगर आपने, if your athletes has a postural decompensation or postural problem since last 3 to 4 years, so first you have to identify it's maybe due to your the sport specific adaptation or not.
सपोज हम उसमें एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक आर्चरी प्लेयर से। तो जब भी हमने एग्जामिनेशन किया था आर्चरी प्लेयर्स का, अगर उनकी ट्रेनिंग एज 3 to 4 ईयर्स है, तो आपको पहले आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि जो पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज है योर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, कि आप अगर आप 500 एरो या 100 एरो शूट कर रहे हो डेज में, तो आर्चरी में क्या होता है, वन हैंड्स आपका स्टैटिक है, दूसरा डायनेमिक है। तो आपकी जो स्केपुलर की पोजीशन है, जो आपका जो डोमिनेंट हैंड है, आपका जो पुल हैंड है, वो आपका स्लाइटली अप रहेगा कंपैरेटिवली टू योर स्टैटिक हैंड। तो उसमें आपको डेविएशन और अल्टरेशन मिलेगा, अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट स्पेसिफिक एडेप्टेशन। उसको आप जस्टिफाइड करो और उसको आप क्लिनिकली कंपेयर करो कि उसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि नहीं, उसमें पर्टिकुलरली प्लेयर्स को पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर पेन नहीं है, देन player will be, means you can from your own side you can go with the green signal, but for in future, because इंजरी जो स्पोर्ट्स में आजकल जो रिसेंटली एरा चल रहा है, उसमें कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में एक हम जो 2 टाइप्स की इंजरी होती है, नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट। तो उसमें काफी सारी इंजरीज जो क्यूमुलेटिव वेज में जो आपके एथलीट्स को देखने को मिलेगी, या फिर क्यूमुलेटिव वेज में वो पर्टिकुलरली ट्रिगर करेगी, तो उसमें आप सर्टेन एस्पेक्ट तक उसको मिनिमाइज कर सकते हो। मींस उसका मतलब है कि अगर आप जैसे कोई बैलेंस वे ऑफ एक्सरसाइज है, वो आप आर्चरी को, अपने आर्चर को आप वो प्रीहैब में, मींस इन फॉर्म ऑफ वार्म अप करना है या फिर कूल डाउन करना है, लेकिन आप वो पोस्चर है वो चेंज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका वही आइडियल पोस्चर है। जैसे बॉक्सर से तो फॉरवर्डेड रहेगा ही, लेकिन उसको फॉरवर्ड होने की वजह से जो सब एक्रोमियल इंपीचमेंट होता है, इंटरनल इंपीचमेंट है, उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्लान करना पड़ेगा, और वो चीज आपको वार्म अप या फिर कूल डाउन और स्पेसिफिक प्रोग्राम में आपको ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि आप उस 13 में 100% उसको ऐसा नहीं कर सकते कि वो ही नहीं, लेकिन आप उसको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक करियर है और स्पोर्ट्स करियर है, वो आप उसको इन्हांस कर सकते हो। और साथ में अगर आपका इंजरी नहीं होगा तो यू कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस। तो जो रिसर्च गोल अभी चल रहा है कि इंजरी मिनिमाइज, इंजरी रिडक्शन एंड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट इन स्पोर्ट्स। अगर आपका इंजरी नहीं होगा तो जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो आप प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाओगे, ट्रेनिंग शेड्यूल परफॉर्म कर पाओगे। तो ऑलरेडी हमने डेफिनेशन देखा था, एथलेटिक्स का डेफिनेशन क्या है, टू डिजाइन द टास्क और सिचुएशन टू टेस्ट द एबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक आउटकम। तो जो भी डिजाइन होगा वो हम वेल डिजाइन प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप वो परफॉर्म कर पाओगे तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए वो अचीव करने के लिए आप रेडी रहोगे। तो एक ये चीज है, इस तौर पे मैं बस ये देना चाहूंगा। Okay, and last question is about what is the reliability and validity of FMS? Okay, so very good question. तो FMS is particularly designed by the Gray Cook. तो ग्रे कुक ने डिजाइन किया है। अगर आप अर्ली एथलीट्स में उसमें देखने को जाओगे, सपोज जैसे बिलो अगर आप 9 ईयर उसको चेक कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा वेरिएबिलिटी हो सकता है। बाकी आप अबाउट 12 ईयर्स में उसका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों का, मीन्स रिलायबल टूल से आपका फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग आप अपने तौर पे उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हो एज पर्टिकुलरली योर एथलीट्स गोल और पर्टिकुलरली स्पोर्ट स्पेसिफिक नेचर ऑफ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट स्पेसिफिक डिमांड। लेकिन ये जो टूल्स है वो रिलायबल है, लेकिन वो एक प्रिडिक्ट नहीं करेगा, कोई भी सिस्टम को प्रिडिक्ट नहीं करेगा। आप उसको सपोज डिसफंक्शन है, आपको एसिमेट्री, उसको आप आइडेंटिफाइड कर सकते हो और उसको प्रिवेंट करने के लिए आप उसमें आगे वर्क कर सकते हो। Okay, so in the context of this last question, what are the other recent equipments or the modern equipments that we can use for the physical assessment point of view? Okay.
ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सो जो हमने अभी बात किया कि ऑब्जर्वेशनल में आप डिफरेंट मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड है, प्लम्प लाइन है, अभी तो रेडियोग्राफिक मेथड है, वो आप यूज कर सकते हो पोस्चर असेसमेंट के लिए। मूवमेंट स्क्रीनिंग के लिए स्पेसिफिक मूवमेंट स्क्रीनिंग टूल्स है, वो आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने एफएमएस आइडेंटिफाइड किया, ऐसा मैं इसमें आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड करना है कि आपकी लेंथ कितनी है, टिबियल लेंथ कितनी है, आइडेंटिफाइड टिबियल टुब्रोसिटी। उसके बाद में सपोज आप एक्टिव स्ट्रेट लेग रेस कर रहे हो, तो उसमें भी आपका मीडियल मेलिनस कहाँ है, तो एक स्पेसिफिक रिलायबल आपको मेजरमेंट के साथ में प्लान करना चाहिए। तो जैसे आपका मसल लेंथ है और इवन रेंज ऑफ मूवमेंट है, आप गोनियोमीटर और मेजर टेप से प्लान कर सकते हो। बॉडी कंपोजिशन वगैरह है तो बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस से, स्किन फोल्ड कैलिपर है, उससे आप प्लान कर सकते हो। जैसे स्ट्रेंथ असेसमेंट है तो आइसोकाइनेटिक साइबेक्स मशीन से, उससे आप स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो। फिर हैंड हेल्ड डायनेमोमीटर है, उसमें आप जो स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स है उसको आप आइडेंटिफाइड कर सकते हो। फिर सपोज एक स्पॉट स्पेसिफिक स्क्रीनिंग के लिए भी काफी सारे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं। जैसे गेट एंड मोशन एनालाइजर यूज हो रहा है, फोर्स प्लेट यूज हो रहा है। ओके, इंफ्रारेड कैमरा के साथ में आप बायोमैकेनिकल असेसमेंट कर सकते हो। फिर इवन रिसर्च पर्पस के लिए आपको ईएमजी भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि वायरलेस ईएमजी आ रहा है। आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो कौन सा मसल कितना लोड ले रहा है, कहाँ वर्क कर रहा है, कौन से फेस पे वर्क कर रहा है, आपका फ्लाइंग रेट क्या है, रेशियो क्या है, वो सारा आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो इंडस्ट्रीज में पर्टिकुलरली जो लेबोरेटरीज मींस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए आप वेरियस एस्पेक्ट पे इवन प्लान कर सकते हो। जैसे कोऑर्डिनेशन के लिए भी आप इक्विपमेंट का यूज कर सकते हो। तो एक बेसिक असेसमेंट है, साथ साथ में अगर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए प्लान करो तो गेट एंड मोशन एनालाइजर है, आपके पास लैक्टिक एनालाइजर है, फिर सेंसर बेस्ड सिस्टम है, उसके बाद फोर्स प्लेट है। तो आप इजीली प्रॉपरली आप उसको एक परफॉर्मेंस तौर पे ऊपर और एक ग्राफिकल वे में भी आप उसको इवेल्युएट और उसको आगे की तरफ अपडेट कर सकते हो और सर्च कर सकते हो। Okay, thank you, Dr. Hardik. I hope no one is having any further questions. Okay, I will ask for the last time, anyone is having any questions related to this evaluation part, because we have some of the sports physios as well in the meeting from various regions. Okay, fine. We are moving further with the today's concluding remarks. Okay, thank you, Dr. Hardik Patel, sir, for your excellent presentation. Okay, for the pre-participation examination in sports from the PT perspective. So, if I want to conclude today's webinar, so we must focus on the biomechanical aspect of all the bodily mechanics. If you know the biomechanics of various body systems, okay, in terms of the day-to-day activity, in terms of sport-specific activity, we will be easily able to identify कौन सा problem है. Once the problem is identified, we have the wide range of techniques for rehabilitation, for the treatment purpose. So our goal should be just to know the biomechanics. That is all we can work on in order to be a good sports physiotherapist as well. बाकी का जो भी है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, you will come to know through the experience. Okay, so thank you all once again. Here I am sharing the Google form link in the chat section. Okay, this Google form will have few questions that needs to be answered to get a e-certificate. Okay, at least 50% score will be needed to get an e-certificate. So here I am sharing it in the chat section. Okay, so once again, on behalf of Srimad Rajchandra College of Physiotherapy, I am very much thankful to Dr. Hardik Patel, to all the attendees, specifically to all the attendees, because as today is Sunday, okay, people must be taking their precious time for this webinar. So thank you to all the attendees.
Okay, I have shared the Google Form link in the chat section. Okay, thank you all once again. Okay, thank you, Dr. Bhavik Javeri and Srimad Raj Chandra College of Physiotherapy for inviting me and organizing a wonderful webinar on particularly sports-related topics. And it's my pleasure to share my knowledge with the attendee. So thank you And once again. Thank you so much to all of you. thank you, sir. And we will surely plan for the webinar 2. Okay, in the continuity of the today's session. Yes, definitely we'll plan so that we can complete our even examination process. Yes, yes. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Okay, so here we are concluding the meeting. Here we are ending the meeting. Thank you all. You just copy the Google Form link so that it will be easy for you to open that form even after the meeting has been ended. Okay, so here we are ending the meeting. Thank you all. Have a nice day.